Hello, a very good afternoon everyone. Welcome to Infinity Learn by Shri Chaitanya. This is Dr. Priyanka and today we are going to continue our chapter biomolecules and we are going to study about enzymes. So hope you all are ready for today's class. Hello everyone. Hello Megha. Hello Aman. A very good afternoon everyone. फटाफट से join कर लो class. And please don't forget to like and share this session with your friends and come on fast. So let's recall what we have studied in our chapter biomolecules. So in the previous lecture we have studied about biomicromolecules, biomacromolecules. Now it is time to learn about enzymes. Good afternoon Megha. Hope you are doing fine. एंजाइम्स में हमेशा कन्फ्यूजन होता है आपको, राइट? सो वेन एवर यू आर स्टडिंग एंजाइम्स फ्रॉम NCERT और वेन एवर यू आर सीइंग आर लुकिंग एट द क्वेश्चंस फ्रॉम नीट, ओके, सो यू आर कन्फ्यूज कि एंजाइम्स होते क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स, व्हाट आर को फैक्टर्स, okay, what is inhibition. So all your confusion will be clear from today's lecture. Okay, so hope you all are ready. चलो देखते हैं. सबसे पहले तो enzymes होता क्या है and which type of questions are asked in examination. Yes, I am doing fine Megha. Okay, and I will request all of you to bring your friends also with you to watch the sessions. Okay, so all those who are present for enzymes, फटाफट से अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दो, गुड आफ्टरनून बोल दो, सो दैट वी कैन प्रोसीड. एंड यस, एज आई थिंक दैट यू गाइज नो, हाय अमन, that after this lecture you will be getting the PDF from our telegram channel of Infinity Learn NEET channel. जो हमारा telegram channel है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा जो भी हम पढ़ेंगे उसका, ठीक है? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर एंजाइम्स? सो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में. जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, देयर इज, यस प्रेजेंट मेघा, गुड, दैट देयर इज वन कैटलिस्ट दैट विल बी इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ दैट रिएक्शन. वैसे ही इन आवर बॉडी there are many reactions going on and those reactions are catalyzed by these enzymes which are termed as biocatalyst. There is some similarity between the catalyst and the enzyme but there are many differences as well. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं what are enzymes. And the first question that is asked from this portion of biomolecules is the nature of enzymes. So enzymes होते क्या हैं बच्चों? So enzymes are mostly proteins. याद रखना, not all enzymes are protein. They are mostly proteins. But some can be RNA as well. So these RNA enzymes are termed as ribozymes. ये पहला क्वेश्चन है बच्चों जो एंजाइम से पूछा जाता है in NEET, right? So most of the enzymes are protein but RNA can also act as enzyme and at that time they are termed as ribozymes. ठीक है, now we know that enzymes करता क्या है? Enzymes they increase the rate of reaction or the speed of the reaction, right? And they are highly specific. Highly specific से क्या मतलब है? That means for any particular reaction there will be one particular enzyme. It is not that कोई भी enzyme किसी भी reaction को catalyze करेगा, नहीं. So these enzymes are specific to a particular reaction. Now you will say क्यों ऐसा? मैम प्रोटीन के अलावा कोई और चीज़ भी एंजाइम हो सकती है क्या? हाँ बेटा, प्रोटीन के अलावा आरएनए भी एंजाइम की तरह काम कर सकता है एंड एट दैट टाइम इट इज टर्म्ड एज राइबोजाइम. ओके मेगा, ओके.
नाउ व्हेन आई से दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एंजाइम्स बाइंड टू द सबस्ट्रेट ऑफ रिएक्शन. सबस्ट्रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इफ दिस इज अ रिएक्शन A plus B, this is a chemical reaction that is forming a product C. So the enzyme will be acting on this chemical reaction, will be increasing the speed of reaction and ultimately the product C will be formed. तो ये जो reactant है ना बच्चों, these are the substrate. Okay, ये जो C है ना, that is the product. And yeah, this enzyme is, this E is the enzyme. समझ में आया? So can you see here कि there are specific site, there is a specific location in the substrate, in the enzyme to which substrate will be attached. यहाँ पे आप देख रहे हो तो enzyme में एक specific site है to which the substrate of the reaction will bind. And then the reaction will go forward. That's why it is highly specific to the chemical reaction. Understood? And yeah, this is unused in the reaction. We will see that the only work of enzyme was to increase the speed of reaction. Speed of reaction इसने बढ़ा दिया, उसके बाद enzyme आपको end of the reaction में वापस से मिल जाएगा. So it is not utilized or used in the reaction. Is it clear till now everyone? I think this is clear. ठीक है? Now let's understand how it works. कि enzyme काम करेगा कैसे काम करेगा? This enzyme will bind to the substrate, will form the enzyme substrate complex. After that there will be formation of enzyme product complex and ultimately you will get the enzyme and product at the end. ठीक है? So can you see यहाँ पर you are getting the enzyme back at the end of the reaction. Can you see? And yeah, also you got the product. तो यहाँ पर सब देखो that how it works. In every enzyme there is one active site. Enzyme जैसे मैंने बताया enzymes are proteins. Okay. So these enzymes have active sites. Okay, so these enzymes are actually tertiary structure of protein with crevices or cracks जिसे हम बोलते हैं active site, और इस active site पे bind करता है substrate. Okay, so to the active site the substrate will bind, there will be formation of enzyme substrate complex, then enzyme product complex, and ultimately you will get the products. Enzyme as it is आपको मिलेगा by the end of the reaction. Okay, so this is how the enzyme will work. Now you will say that there should be something that this enzyme is changing. Whenever you will say what all chemical reactions that are going on in our body, बहुत सारे chemical reactions हो रहे हैं हमारे body में, biological reactions. Without enzymes those reactions are slow. But जब हम enzyme देखेंगे कि enzyme when it will act in that reaction it will speed up the reaction. So there should be some work of these enzymes. ये enzyme कुछ तो कर रहा होगा. Structure changes? नहीं, structure नहीं change कर रहा है. ये enzyme कुछ कर रहा है जिसके वजह से speed बढ़ रहा है reaction का, structure change नहीं कर रहा है. तो क्या कर रहा है? क्या करेगा? Yes, enzyme act as catalyst. बिल्कुल सही बात है बच्चा कृष्णा. Enzyme act as catalyst. जैसे हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं. बिल्कुल सही बात है. They also increase the rate of reaction. Okay. But what is the difference between catalyst and biocatalyst, catalyst and enzyme? एक बहुत मेजर डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है वो? कि कैटलिस्ट तो हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है इन केमिस्ट्री. कितना भी टेम्परेचर दे दो, दे आर इनऑर्गेनिक, दे विल वर्क. बट व्हाट अबाउट एंजाइम्स? दे गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें यहाँ पे रिएक्शन का तो हमारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं. देयर आर सर्टेन एंजाइम्स, कुछ ऐसे भी हैं
जो हम ऐसे बैक्टीरिया से लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में थ्राइव करता है, तब वो एंजाइम काम करेगा ज़्यादा टेम्परेचर में भी, है ना? यस, यू आर राइट, एंजाइम्स रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर। गुड। तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली ये एंजाइम्स करते क्या है किसी भी रिएक्शन में। यस, let's understand what enzymes actually do in order to increase the speed of reaction. So they work on activation energy, very important. They work on activation energy. Okay. So the activation energy of a reaction is reduced when we add enzyme. So when we add enzyme in any reaction, the activation energy is lowered. Okay? So चलो इस ग्राफ को समझते हैं. This graph is given in your NCERT and it is asked in NEET. So let's understand this graph and together with it, let's understand that how an enzyme works. ठीक है? So, yeah. So can you see this is the substrate. This is the substrate and this is the energy level of a substrate. But in order to form a product, there should be some energy. Is there any mistake in age criteria in NMC draft? No, there is no mistake, Krishna, for now. If it comes up, definitely we will be having a particular session on it and then we will be giving all the information to you. Okay? Okay, so let's first confirm it and then let's proceed. Right? Okay, so you are talking about the changes. The changes, yes, changes are there. The changes are there. Okay? Chalo. Now coming to substrate and product. The substrate and product. So the energy that is required in a chemical reaction to form a product from the substrate is the activation energy and it is quite high without enzyme. But with the help of enzyme, this activation energy is lowered. Can you see? Is lowered. Now this is important to understand. That what is a transition state. Here you can see that there is something written as transition state. तो ये transition state होता क्या है पहले ये समझते हैं. Okay. So the S has to go through a much higher energy state or transition state. So what is a transition state? ऐसा नहीं है कि substrate को एक energy दिया हमने तो वो सेम एनर्जी से जो है वो प्रोडक्ट बना लेगा. नो, इट रिक्वायर्स सम एडिशनल एनर्जी एंड दैट इज टर्म्ड एज द ट्रांजिशनल स्टेट. सो वेदर द रिएक्शन इज ट्रांजिशन मीन्स चेंज, राइट. नाउ वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसको इनिशिएट करने के लिए, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है जो उसका ट्रांजिशन स्टेट होता है. दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट. नाउ दिस डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, okay, this difference in the energy of substrate from that of the transition state is activation energy. तो ये सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी. प्लीज एक्सप्लेन अगेन अबाउट ट्रांजिशन स्टेट. डेफिनेटली मेगा. व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required by substrate to form product is the transition state. ठीक है. ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कुछ एडिशनल एनर्जी चाहिए रिएक्शन को होने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट. अंडरस्टूड? तो ये है ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक. अब ये जो एडिशनल एनर्जी है
that is required to attain this transition state. यहां से यहां तक का जो एनर्जी हमको चाहिए to get that transition state is the activation energy. तो ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये वाला जो एनर्जी है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, ट्रांजिशन स्टेट पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ दिस एक्टिवेशन एनर्जी इनिशियली इट वाज क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा था इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, बट जब हमने एंजाइम ऐड किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया. बहुत थोड़ा सा हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए सो दैट वी कैन रीच अ ट्रांजिशन स्टेट विद द एडिशन ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, और भी सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं इसको. चलो और सिंप्लीफाई कर देती हूँ. कोई रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स अगर मैं उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दूंगी तो कम एनर्जी चाहिए होगा रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए. तो रिएक्शन कैसा होगा? जल्दी होगा, फास्ट होगा. कंफ्यूज बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी. या ये लेवल इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस लेवल इज ट्रांजिशन स्टेट and the energy that we are providing and that is being utilized is activation energy. समझ में आया? वो ट्रांजिशन स्टेट ये है और उतना पहुंचने के लिए जो एनर्जी हमने दिया रिएक्शन को दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, सो होप दिस इज क्लियर. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम? एंजाइम एक्चुअली करता क्या है? क्या करता है एंजाइम एक्चुअली? ये लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को ही. It brings down the activation energy that is making the transition of S to P. So S से P जाने के लिए पहले एक certain amount of energy चाहिए होता था जिसको हम activation energy बोलते हैं, उसको कम कर दिया एंजाइम ने, तो बहुत थोड़े से एनर्जी से भी प्रोडक्ट बन जाएगा. That's why the reaction is fast. Okay, so this is how enzymes work. It lowers the activation energy. This should be your key sentence. Activation energy कम करता है एंजाइम, ये आपका की सेंटेंस होना चाहिए. चलो, now enzymes can be of two types, simple और conjugated. नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल एंजाइम में तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा, whereas conjugated एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट भी होगा और एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा. एपो एंजाइम से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, होलो एंजाइम एपो एंजाइम से क्वेश्चन पूछा गया था नीट में. सो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में एक एपो एंजाइम होगा विच इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर. एंड कंबाइन करके इन्हें हम क्या बोलते हैं? होलोजाइम. ठीक है, सिंपल एंजाइम तो प्रोटीन का ही बना है, उसमें कोई कोफैक्टर नहीं है, कुछ एपो एंजाइम नहीं है. बट हम कॉन्जुगेटेड की बात करें तो होल एंजाइम, पूरे एंजाइम को हम बोलेंगे होलो एंजाइम. दैट विल हैव एपो एंजाइम दैट इज द प्रोटीन पार्ट एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोफैक्टर. कोफैक्टर बोलते हैं, कोएंजाइम नहीं बोलते हैं. एवरीबडी पे अटेंशन, इट इज कोफैक्टर एंड नॉट कोएंजाइम. सो holozyme will have apoenzyme and cofactor, right? cofactor. होलो एंजाइम क्या था फिर? होलो एंजाइम पूरा एंजाइम, समझ में आया? होलो एंजाइम पूरा एंजाइम जिसमें एपो एंजाइम है एंड कोफैक्टर है. ओके, now this cofactor can be of three types. This cofactor can be of three types. So cofactor में क्या क्या हो सकता है? cofactor एक कोएंजाइम हो सकता है या एक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है
या कोई मेटल आयन हो सकता है। राइट, सो दिस कोफैक्टर कैन बी अ कोएंजाइम या होलोजाइम, हाँ दैट इज सेम मेगा, ठीक है। नाउ कोफैक्टर कैन बी कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप और अ मेटल आयन। मतलब एक एंजाइम में देयर कुड बी एपोएंजाइम और कोएंजाइम, एपोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपोएंजाइम और मेटल आयन, ऐसा हो सकता है। अंडरस्टूड, ठीक है। सो वन बाय वन वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल दीज एज वेल। सारे कोफैक्टर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप? Coenzyme is loosely attached to the apoenzyme part. Coenzyme is loosely attached to the apoenzyme part. Prosthetic group is firmly attached to the apoenzyme part. Okay, and metal ion is the inorganic cofactor. बाकी दोनों ऑर्गेनिक है, कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, बट मेटल आयन इज द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। समझ में आया? सो लेट्स राइट इट डाउन। कोफैक्टर विच इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: कोएंजाइम that loosely binds to the apoenzyme, prosthetic group that firmly binds to the apoenzyme, and metal ion that is the inorganic cofactor. ठीक? Now let's see what are the factors that will affect the enzyme activity. वो कौन से factors हैं जो enzyme activity को affect करेंगे? तो सबसे पहला factor होता है temperature. हमने देखा since enzymes are protein, so अगर हम temperature बढ़ाएं, so at high temperature the enzymes will get denatured. अगर मैंने temperature कम किया then the protein or the enzymes will become temporarily inactive. ठीक है? But there are certain enzymes like the enzymes obtained from Thermus aquaticus bacteria. ओके, सो अगर इस बैक्टीरिया से हमने एंजाइम डिराइव किया then that enzyme will be special. And what is special with this bacteria and what will be the special with that enzyme? Anybody, can you tell me? Hi Piku. Yes, this Thermus aquaticus bacteria, ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है hot water sulfur springs में, right? So the enzyme that we get from this Thermus aquaticus, that is Staq polymerase, this Staq polymerase enzyme will be heat stable. तो याद रखो, majority of enzymes, okay, so majority of enzymes will be denatured by temperature or will be inactivated temporarily for low temperature. But अगर हम ऐसे बैक्टीरिया से एंजाइम ले रहे हैं जो कि खुद हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, then those enzymes will be heat stable. Okay, hi Anil, hi Aisha, understood everyone? So that is the factor that is affecting the enzymes. So temperature एक बहुत ही important factor है जो enzyme की activity को hamper करता है, affect करता है. तो ये जो हमारे enzymes है ये बहुत ही narrow range of temperature में active होते हैं and आपको एक bell shaped का curve मिलता है and that is termed as
and that temperature is termed as optimum temperature, right? तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो टेम्परेचर है इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। सिमिलरली हम देखेंगे देयर इज ऑप्टिमम पीएच एज वेल। 656 मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी, दैट्स गुड, कंग्रेचुलेशंस। सो बहुत ही अच्छे मार्क्स है, डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉलेज। ओके, इफ यू वांट टू know about any particular college you can ask. Okay, so yeah, understood. So this is how temperature is going to affect the activity. Now coming to the point, क्या कोई criteria है जिसके basis पे ये enzyme activity differ करता है? Yes, there is. So with every 10 degrees Celsius change in the temperature, अब ये 10 डिग्री सेल्सियस चेंज कैसे भी हो सकता है? अगर 10 डिग्रीज टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी रिएक्शन का तो भी, या अगर 10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है किसी भी रिएक्शन का तो भी क्या होगा? क्या होगा कि द रेट विल डबल और डिक्रीज, ओके, बाय हाफ। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसके बेसिस पे आप देखोगे सीधे रेट ऑफ रिएक्शन या तो आधा हो जाएगा या तो डबल हो जाएगा। So this is how it varies and this is how it affects the rate of reaction. Correct? और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी का। ये दो लाइन जो है ना ये एनसीईआरटी से ली गई है। क्यों ली गई है? बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एक एंजाइम है हमारे बॉडी में, हमें पता है कहाँ है, आरबीसी में भी है, बहुत सारा आरबीसी में है और आरबीसी के बाहर प्लाज्मा में भी थोड़ा है। ओके, सो दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंजाइम that helps in the formation of carbonic acid and dissociation of carbonic acid into bicarbonate and H plus ions. All these reactions are going on where? In RBC. ठीक है, थोड़ा रिएक्शन RBC के बाहर भी होता है according to NCERT, तो भूलना नहीं है वो भी। Okay, and this is a very efficient enzyme. And because of this enzyme, this reaction of formation and breaking down of carbonic acid is increased by around 10 million times. So this is the power of enzyme. ये power है enzyme का बच्चों। ठीक है, अगर enzymes नहीं होते rate of reaction slow होता है, but अगर enzymes है तो 10 million times तक जो है reaction का speed increase हो सकता है। Now this is asked in exam, NEET का question है ये दोनों। Done? Okay. So the next factor is pH. जैसे हमने देखा था temperature is a key factor, similarly pH. Okay, so there is again one optimum pH in which the enzymes are fully active, right? So they are again sensitive to pH as well. So अगर high pH होता है they get denatured and अगर कम pH होगा सो टेम्पररी दे विल बिकम इनएक्टिव। याद रखना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीनेचरेशन एंड टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज, इन दोनों के बीच में ना देयर इज अ डिफरेंस। ओके, प्राइवेट कॉलेज में 280 इन इंडिया। Okay, so definitely Aisha, you can go for a second attempt. There is no harm in going for a second attempt. Be positive, लग जाओ, खूब मेहनत करो, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो है आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आई हैव सीन स्टूडेंट्स गोइंग फ्रॉम 250 till 600 ओके इन जस्ट 1 ईयर। तो बिल्कुल बिल्कुल अगर आप मेहनत करते हो, अभी से लग जाते हो, पूरा साल है आपके पास, पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ, डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। ओके बच्चा, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो है 12th क्लास में 95% अटेंडेंस है, तो मुझे बिल्कुल लगता है कि आपको एक चांस जरूर लेना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बच्चा डीनेचरेशन एंड टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, ये समझ जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, पीएच अगर ज़्यादा है तो डीनेचरेशन हो जाएगा एंजाइम का, दैट मीन्स ये वापस से काम का नहीं होगा, वापस से ये किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर पाएगा। बट इन लो पीएच, लो टेम्परेचर, द
एंजाइम विल अटेन अ टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, मतलब वापस से अगर उसे अगर ऑप्टिमम पीएच मिला या वापस से उसे अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला, अगेन इट कैन बिकम एक्टिव. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, चलो गुड. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है. तो व्हाट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन? लेट्स अंडरस्टैंड. सबस्ट्रेट तो मैंने बता दिया क्या होता है. अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी मिलके बना रहा है प्रोडक्ट सी, तो ए एंड बी उसके सबस्ट्रेट हो गए. ठीक है. तो व्हाट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड हाउ इट इज affecting the rate of reaction? So initially, can you see the graph? Initially, अगर मैं substrate concentration बढ़ाती हूँ, initially if substrate concentration is increasing in a reaction, the rate of reaction और द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. धीरे धीरे जैसे मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया किसी भी रिएक्शन में, डेफिनेटली स्लोली द वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. यू कैन सी द ग्राफ. बट आफ्टर अ लेवल but after some time when Vmax is attained, Vmax attain इसलिए होता है क्योंकि after some time even if I am increasing the substrate concentration, आगे देख रहे हो, अगर मैं substrate concentration बढ़ाते जाऊंगी still the rate of reaction will not increase. उसके बाद भी rate of reaction जो है वो नहीं increase होगा, तो ये स्टेबल रहेगा, या यू कैन से इट विल रिमेन एट Vmax. ऐसा क्यों? डू यू हैव अ रीजन? किसी के पास ऐसा कोई रीजन है? किसी के पास ऐसा क्यों होगा कि व्हेन देयर इज लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो लो. जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया, ऑप्टिमम कर दिया, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, बट उसके बाद अगेन आई एम इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बट कोई चेंज नहीं आ रहा है एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी में. ऐसा क्यों? यू कैन सी द ग्राफ. बढ़ रहा है इनिशियली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है रिएक्शन का, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ता है. क्यों? दिस इज बिकॉज ऑल एंजाइम्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड. हमने देखा है. सो व्हाट इज an enzyme? It is a tertiary structure of protein with an active site. Yes, very good, Bhaktish. So yes, you are right. So किसी भी enzyme में substrate कुछ इस तरह से bind करता है in the active site. So this is enzyme, this is substrate. ठीक है. जब तक enzyme है तब तक substrate उससे bind करेगा. फिर एक बार enzyme तो एक बार एंजाइम सारे ऑक्यूपाई हो गए ऑलरेडी, सारे सबस्ट्रेट ने एंजाइम को ऑक्यूपाई कर लिया. उसके बाद मैं कितना भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं, इफ आई एम नॉट इंक्रीजिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, देयर विल नॉट बी एनी इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. यू आर राइट. सारे एंजाइम, सारे एक्टिव साइट यूज हो गए हैं, तो अगर मैं सिर्फ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती रहूं, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा. अंडरस्टूड? सो दिस is how this factor affect the rate of reaction. ठीक है. यहाँ पे एक और वैल्यू आपको दिखता है, नजर आता है, Km वैल्यू. व्हाट इज दैट वैल्यू? क्या है Km? Km का मतलब क्या है? Km स्टैंड्स फॉर माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. क्या है इसका डेफिनेशन भी लिख देती हूं मैं. व्हाट इज Km वैल्यू? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या बोल रहा है? It is the substrate concentration. It is the substrate concentration. ये देख रहे हो Km वैल्यू क्या है? ये तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है. सबस्ट्रेट बता रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे.
So this is the substrate concentration at which the rate of reaction reaches Vmax by 2. ठीक है, डेफिनेशन भी सुनो और इस ग्राफ में भी देखो. Km value or Michaelis-Menten constant is the substrate concentration at which the velocity of reaction reaches half of its maximum value. तो Vmax तक पहुंचने के लिए, Vmax by 2 तक पहुंचने के लिए जितना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए, that is your Michaelis-Menten constant और Km value. Understood? Everyone, Km value सबको समझ में आया? Okay? So, substrate concentration जब Vmax by 2 होता है, that is Km value और Michaelis-Menten constant. Now the next factor that will affect the rate of reaction is enzyme concentration. Again same, जैसा हमने substrate concentration में देखा था वैसे ही होगा. अगर इनिशियली मैं एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं किसी रिएक्शन में, यस, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा टिल अ सर्टेन एक्सटेंट. उसके बाद मैं कितना भी एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, विदाउट इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट चेंज. तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करना है, आई शुड इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. I should increase the substrate concentration together with enzyme concentration, then only there will be increase in the rate of reaction. समझ में आया? अदरवाइज अगर मैं एक एक करके सिर्फ एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं या मैं सिर्फ अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, उसका वेलोसिटी बढ़ जाए, तो नहीं होगा. आई शुड हैव इंक्रीज्ड बोथ substrate and the enzyme concentration if I want my velocity of reaction to increase. समझ गए ना इतना? तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, चलो अब बात करते हैं एंजाइम इनिबिशन की, जिसमें सबको कंफ्यूजन होता है, स्पेशली द एग्जांपल्स. ठीक है, सो एंजाइम इनिबिशन का मतलब क्या है? देयर आर सर्टेन केमिकल्स दैट कैन शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी. ऐसे बहुत सारे बच्चों केमिकल्स हैं जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग, एंड दोज केमिकल्स आर टर्म्ड एज इनहिबिटर्स. उन केमिकल्स को तो हम इनहिबिटर्स बोलते हैं. नाउ द इनहिबिशन इज ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह का इनहिबिशन होता है. कॉम्पिटिटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये इनहिबिशन है. कॉम्पिटिटिव, like you all are appearing for competitive exams, you are preparing for various competitive exams, and obviously you are competing with the children of your age. आप अपने ही तरह के बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे हो ना. ऐसा तो नहीं है कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप यूपीएससी वाले के साथ compete कर रहे हो, नहीं. So this is how competitive inhibition works. If this is the enzyme and this is the active site, फिर से देखेंगे, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है. दिस इज द सबस्ट्रेट. ठीक है, तो जो इनहिबिटर होगा ना बच्चों, वो एकदम जो इनहिबिटर का शेप होगा ना, दैट विल रिजेंबल द शेप ऑफ सबस्ट्रेट. क्या आप देख रहे हो? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का शेप, साइज एकदम सेम है. Okay, so this inhibitor will compete with the substrate for binding to the active site. So अगर ये inhibitor bind कर जाता है to this active site, definitely the substrate will not be able to bind and the reaction will stop. Simple competitive inhibition, जिसमें inhibitor और substrate compete कर रहे हैं.
किस लिए compete कर रहे हैं? To bind to the active site. Understood this much? चलो ये समझ में आ गया तो एक अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में. And what is that example? Very common example that is asked in exam, given in NCERT. Malonate का example. Okay, so there is one enzyme known as succinic dehydrogenase. हमें पता है ना, जहाँ भी एज लग जाता है तो वो एंजाइम बन जाता है, राइट? So there is this enzyme known as succinic dehydrogenase. Now this succinic dehydrogenase enzyme, okay, इसका सबस्ट्रेट क्या है बच्चों? इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट एंड इसका इनहिबिटर क्या है? इसका इनहिबिटर है मैलोनेट. इसका इनहिबिटर है मैलोनेट. सो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, इंस्टेड ऑफ succinate binding to this enzyme, if malonate binds, then the enzyme will not be do its activity. So this is termed as competitive inhibition, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि ये जो succinate है और ये जो malonate है, इसका size, shape are very similar. Yes, Rolf, good. So size and shape of malonate is similar to succinate and they compete for the active binding site of enzyme succinic dehydrogenase. समझ गए? चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नॉन कॉम्पिटिटिव या एलोस्टेरिक इनहिबिशन. नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव. सो व्हाट इज नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक इनहिबिशन? There is change in the shape of active site so that the substrate is not able to bind. So basically अगर ये हमारा enzyme है, again if this is the enzyme with this active site, ठीक है, with this active site, अब इससे bind करना चाहिए एक substrate S, but instead of this the product binds to the allosteric site. याद रखना, allosteric inhibition is also termed as feedback inhibition or product inhibition. Allosteric inhibition is also known as feedback inhibition. Okay, so if the product binds to the allosteric site of an enzyme, because of which the shape of active site changes and substrate will not be able to bind to that active site, then definitely it will become allosteric or feedback inhibition. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप बॉटनी में पढ़ते हो हेक्सोकाइनेज के बारे में. ओके, सो हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो ये क्या हो गया? फीडबैक इनहिबिशन हो गया. समझ में नहीं आया? फिर से बताती हूँ. एक एंजाइम में ये जो इस एंजाइम में जो इनहिबिटर है, जो इस केस में प्रोडक्ट है, ये इनहिबिटर एलोस्टेरिक इनहिबिशन में एक्टिव साइट से बाइंड करने की जगह कुछ एक दूसरे साइट से बाइंड करता है, जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट. सो एलोस्टेरिक साइट से जब कोई इनहिबिटर या प्रोडक्ट बाइंड करेगा, एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड अब नहीं कर पाएगा. सो दैट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन. ओके मेघा, एलोस्टेरिक इनहिबिशन का दूसरा नाम है प्रोडक्ट और फीडबैक इनहिबिशन, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है लार्ज अमाउंट में, वही जाके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज एंजाइम. हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ओके, जो कि किससे इनहिबिट होता है? तो इसका इनहिबिटर क्या है? इसका प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. समझे? एलोस्टेरिक इनहिबिशन. Now coming to uncompetitive inhibition, and this is irreversible inhibition. This is irreversible inhibition.
ये परमानेंटली किसी भी एंजाइम को, सी दिस इज रिवर्सिबल, दीज आर रिवर्सिबल बट दिस इज इरिवर्सिबल। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम ही चीज होता है, द इनहिबिटर विल बाइंड टू सम साइट other than the active site on the enzyme and will not allow inhibitor to bind to the active site। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बताओ, एनी गेसेस, क्या एग्जाम्पल है ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एनी एग्जाम्पल? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, cytochrome oxidase। Now this cytochrome oxidase enzyme is permanently, irreversibly inhibited. Yeah, it's okay, I am telling you. So this cytochrome oxidase enzyme is permanently, irreversibly inhibited बाय साइनाइड। साइनाइड पॉइजनिंग सुना है आपने? तो इसमें इनहिबिटर क्या है? साइनाइड। ओके, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है साइनाइड परमानेंटली। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव, जिसमें आपको याद रखना है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, हेलो। देन नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जिसमें आपको याद रखना है प्रोडक्ट इनहिबिशन और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटिंग हेक्सोकाइनेज। और फिर आगे आपको अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में याद रखना है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, जिसका इनहिबिटर है साइनाइड। ओके, चलो अब देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट क्लास इज द इनहिबिटर मेगा। साइनाइड इज द इनहिबिटर जो परमानेंटली इनहिबिट कर देगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को। ठीक है, नाउ नेमिंग ऑफ एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनको हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, एंड वो 6 क्लासेस है ऑर्थोलिल। ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। ठीक, क्या है ये ऑर्थोलिल? ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लासेस ऑफ एंजाइम है ये। तो ये तो हमको पता है कि सारे एंजाइम के एंड में एज लगा होता है मेजॉरिटी टाइम्स, राइट? सो दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिएक्शन दैट दे आर कैटेलाइजिंग। जिस तरह के रिएक्शंस का स्पीड वो बढ़ा रहे हैं, उन रिएक्शंस के नाम पे इनके ये ग्रुप्स डिसाइड हुए हैं। जैसे कि ऑक्सीडोरिडक्टेज, सो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर है उसको कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स को हमने कहाँ डाल दिया? ऑक्सीडोरिडक्टेज की कैटेगरी में। नेक्स्ट, ट्रांसफरेज, अगर कोई ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, राइट? सो दोज एंजाइम्स आर कैटेलाइज्ड बाय ट्रांसफरेजेस। नेक्स्ट इज हाइड्रोलेसिस, अगर कहीं किसी रिएक्शन में ब्रेकडाउन हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं बाय एडिंग वाटर, देन दोस एंजाइम्स आर क्लासिफाइड एज हाइड्रोलेसेस। ओके, नेक्स्ट इज लाइएसेस, अगेन किसी रिएक्शन में अगर बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं बट वहां पर वाटर का एडिशन नहीं हो रहा है, देन दैट इज लाइएसेस। नेक्स्ट इज आइसोमरेजेस, जो आइसोमेरिक रिएक्शंस हैं। ओके, आइसोमेरिक रिएक्शंस में अगर कोई एंजाइम यूज हो रहा है देन दे आर क्लासिफाइड अंडर आइसोमरेजेस, राइट? एंड अल्टीमेटली लाइगेज, नाम से समझ में आ रहा है लाइगेज तो हम कितनी बार सुनते हैं कि whenever there is a reaction in which there is joining of molecules then it is ligases, right? So ये ऑर्थोलिल आपको 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स याद रखना है, राइट? सो लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज क्लास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिपीटेडली आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हम देखने वाले हैं ऑफ कोफैक्टर्स दैट आर आस्क्ड इन नीट।
वो पूरे कोफैक्टर वाले पैराग्राफ में से अगर आपने इतना याद कर लिया ना बच्चा, दैट्स इट। ठीक है, इसी पे से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में। सो कोफैक्टर हमने देखा था, कोफैक्टर इज अ पार्ट ऑफ होलोजाइम दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, हमने बताया था कि ये कोएंजाइम भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है, या प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है। हमने देखा था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इज firmly attached to the protein part of the enzyme, and coenzyme is loosely attached, okay, to the protein part of the enzyme, right? Now अगर हम बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल की, so prosthetic group heme. So heme is the prosthetic group in the enzymes peroxidase and catalase. Peroxidase जो एंजाइम है एंड कैटालेज जो एंजाइम है, इसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है दैट इज फर्मली अटैच्ड टू द एपो एंजाइम और द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एंड दैट इज द हीम। ओके, नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं कोएंजाइम की, सो देयर आर मेनी वाइटामिन्स, ये PYQ है, देयर आर मेनी वाइटामिन्स दैट एक्ट एज अ कोएंजाइम। लास्ट टू लास्ट ईयर ये पूछा गया था, एंड एक एग्जाम्पल इज वाइटामिन का नियासिन। सो दिस नियासिन वाइटामिन, नियासिन कौन सा वाइटामिन है? वाइटामिन B3, राइट? सो दिस नियासिन is a component of NAD and NADP, which is a part of enzyme. And the last question that is asked from NEET is about zinc. So this enzyme carboxypeptidase, okay, so this enzyme carboxypeptidase जो आप पढ़ते हो digestion and absorption chapter में, okay, जो कि प्रोटीन का digestion में help करता है, this enzyme will have a cofactor made up of zinc, this metal ion. So ये कुछ points हैं जिससे हर साल कभी ना कभी questions आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ने लगोगे, एंड इसी के साथ जो है आपका एंजाइम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। सो होप दिस सेशन वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे इस एंजाइम वाले पोर्शन जो कि है बायोमोलिक्यूल्स का, उससे कवर किए हैं। ठीक है, एंड याद रखो जो भी मैं सेशंस ले रही हूँ उसमें जहाँ भी मैं स्टार मार्क करा रही हूँ, जहाँ भी मैं बॉक्स बना रही हूँ, दैट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये आपको खुद ही पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे नीट के, आप देखोगे यहीं से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्लास कब होगी बच्चा? नेक्स्ट क्लास आई थिंक फ्राइडे को होगी, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 4 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का आपको हमें लिंक नज़र आ रहा है चैट बॉक्स में, उसको ज्वाइन करना है आपको। वहाँ पे जो है आपको PDF मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी जब जब भी क्लासेस होगी मेरी। ओके, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन आई डोंट टीच बच्चा, वो आपको बॉटनी में पढ़ने के लिए मिलेगा, बट सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी डेफिनेटली आई विल बी टीचिंग। ओके, क्लासेस 12 के भी जो चैप्टर्स है जूलॉजी वाले आई विल बी टीचिंग। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। लाइक करना मत भूलना सेशन को, अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे PDF और सारी सेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।